بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناولٹ ہے ہمارا آج کا لاپتہ، جو کہ تحریر کیا ہے نمرہ احمد نے۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ شام کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دوپہر میں خوب بارش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہری گھاس ابھی تک گیلی تھی۔ ڈرائی وے کا فرش بھی پانی کے تہہ سے شیشے کی مانند چمک رہا تھا۔ وہ موسم سے جیسے بے نیاز سی لان کے وسط میں رکھی کرسی پر ٹانگ رکھ کے بیٹھی تھی۔ چائے کا کپ سامنے میز پر رکھا تھا اور اخبار کے صفحات گھٹنے پر پھیلائے وہ کوئی سیاسی کالم پڑھنے میں منہمک تھی۔ پڑھتے پڑھتے وہ چائے کا کپ بھی اٹھا لیتی اور ذرا سا گھونٹ بھر کر واپس رکھ دیتی۔ اس دوران بھی اس کی نگاہیں اخبار سے نہ ہٹتی تھیں۔ وہ سادہ گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی، دوپٹہ شانوں پر پھیلا تھا، بال کندھوں تک آتے تھے جنہیں اس نے کیچر میں ہانپ باندھ رکھا تھا۔ سامنے سے بال ترچھے سے کٹے ہوئے تھے اور اتنے چھوٹے تھے کہ کانوں کے پیچھے نہیں اڑوسے جا سکتے تھے۔ سو جب وہ یوں ہی کندھے جھکائے گردن جھکا کر اخبار پڑھنے میں محو ہوتی تو یہ چند لٹیں ماتھے پر جھول رہی ہوتی۔ دفتن میز پر رکھا اس کا موبائل ایک حرکت کے ساتھ بجنے لگا۔ اس نے کالم کی سطر پڑھتے پڑھتے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا اور چہرے کے سامنے لا کر اسے دیکھا۔ رضا انکل کی کال تھی، ابا میاں کے بہترین دوست جو ہر دوسری شام یہیں پائے جاتے تھے۔ آج جانے کیوں نہیں آئے تھے؟ اس نے سبز بٹن دبایا اور فون کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم رضا انکل، کیا حال ہیں آپ کے؟ وہ پھر سے کالم پر نگاہیں جمائے کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز میں وہی سنجیدگی اور ٹھہراؤ تھا جو اس کے چہرے بلکہ پوری شخصیت پر چھایا ہوا تھا، وقار بھرا ٹھہراؤ۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، تمہارے ابا میاں کا بھوت اترا انیکسی کو کرائے پر چڑھانے کا یا نہیں؟ کہاں انکل، میری تو سنتے ہی نہیں ہے۔ حالانکہ کہہ کر تھک گئی ہوں کہ ضرورت کیا ہے گھر میں شور کرنے کی، ہم دو لوگ ہیں، ایک دوسرے کو بہت ہیں، مگر لیں وہ آ ہی گئے ہیں۔ اس نے صفحے پلٹتے ہوئے ابا میاں کے برآمدے کی سیڑھیاں اترتے دیکھ کر کہا، جبھی ایک گہری ٹھنڈی سی سانس لی۔ بعض اوقات دو کو تیسرے کی ضرورت ہوتی ہے محترمہ۔ وہ جب بھی خفگی بھرا سہانا انداز اپناتے تو اسے یوں ہی محترمہ کہتے تھے۔ ہمارا تیسرا اللہ ہے اور وہ ہی ہمیں کافی ہے، اس نے دانستہ بلند آواز میں کہا اور فون ابا میاں کی جانب بڑھا دیا جو اس کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھ رہے تھے۔ لیجئے، آپ کے دوست ہیں جو آج غلطی سے یہاں نہیں آئے۔ ابا میاں نے مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے فون تھام لیا۔ اس کی آواز رضا انکل نے سن لی تھی جب بھی خفگی سے بولے، لالا رخ سے کہو اگر میرا آنا اتنا ہی برا لگتا ہے تو آئندہ نہیں آؤں گا۔ فون کی آواز اتنی تھی کہ وہ سن سکتی تھی۔ بہت بہتر، یہی بات اسٹامپ پر لکھ کر دیں تو میں مانوں گی، وہ شگفتگی سے کہتی ہوئی واپس اخبار کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ مذاق کر رہی ہے، مگر وہ مذاق کرتے ہوئے بھی مسکراتی نہیں تھی، بس ایک ٹھہراؤ سا تھا چہرے پر، اور وہی ٹھہراؤ لالا رخ کی زندگی بن چکا تھا۔ سن لیا اپنی بیٹی کا جواب؟ اب بتاؤ میرے کام کا کیا بنا؟ کرسی کھینچ کر آرام سے بیٹھ لینے کے بعد اب ابا میاں فون پر کہہ رہے تھے۔ ان کی بات کے جواب میں رضا انکل کچھ بتانے لگے۔ آواز قابل سماعت تھی مگر وہ توجہ نہیں دے رہی تھی، سو سن نہ پائی۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ فیملی ساتھ ہے یا اکیلا ہے؟ اچھا، بہن بھائی نہیں ہے تو ماں باپ بیوی بچے تو ہوں گے؟ اچھا، باپ نہیں ہے اور ماں؟ اچھا ٹھیک، تو وہ بھی کراچی سے آ رہی ہے یا یہ اکیلا ہوگا؟ ہاں خیر، ایک بندہ بھی بہت ہوتا ہے۔ میں تو کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ اس انیکسی کو رینوویٹ کرواؤں، مگر یہ لالا اس بڈھے کی سنتی کہاں ہے، اپنی ہی مرضی کرتی ہے۔ لالا رخ نے صفحے سے نگاہیں نہیں اٹھائی، ویسے ہی انہماک سے پڑھتی رہی۔ یہ تو اب بھی میں نے نورا سے کہہ کر انیکسی کی صفائی کروائی ہے، اسے کھولا ہے تاکہ یہ کرائے پر چڑھ سکے، ورنہ ہماری دختر نیک اختر کا بس چلے تو گھر میں پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کا داخلہ بھی بند کر دیں۔ خیر، تم کاشان کو کہو کل ہی مستری مزدوروں کو بھیج دے ادھر تاکہ مرمت کا کام ہو سکے، ورنہ انیکسی رہنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ انہوں نے رضا انکل سے ان کے بیٹے کاشان کا نام لے کر کہا۔ کاشان اپنی بیوی کے ساتھ اکثر ان کی طرف چکر لگایا کرتا تھا اور ایسے بہت سے کام ابا میاں اس کے سپورٹ کرتے رہتے تھے جنہیں وہ بخوشی انجام دیتا تھا۔ تو تمہارے دوست کا یہ بیٹا کب تک آ جائے گا؟ ٹھیک ہے، بس تم اس کا پتہ وغیرہ خود سمجھا دینا اور میرا نمبر دے دینا، میں بات کر لوں گا۔ فون بند کر کے انہوں نے میز پر رکھا اور اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح اخبار کے مطالعے میں محو تھی۔ کرایہ دار مل گیا ہے؟
انہوں نے پرمسرت انداز میں اطلاع دی۔ میں تو اب بھی کہوں گی اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ پڑھتے ہوئے بولی۔ بس پھر نہ ہی کہو۔ وہ جیسے بگڑ کر کھڑے ہوئے تھے۔ تم نے ان کے گھر کی ویرانیوں کی عادت ہو گئی ہے، تم تو اس گھر کی ویرانیوں کی عادی ہو گئی ہو، مگر میں نہیں ہوا۔ وہ خفگی سے بڑبڑاتے لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتے واپس اندر چلے گئے۔ لالا رخ نے اطمینان سے اگلا صفحہ پلٹا۔ وہ وقت گزر گئے جب اسے ایسی باتوں سے فرق پڑتا تھا، اب تو ہر شے میں جمود اور ٹھہراؤ تھا، اور اس نے ان ویرانیوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ انیکسی سے صبح سے شور کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ پالش، پینٹ، مرمت چیزوں کی اٹھک پٹک، مزدوروں کا آنا جانا، انیکسی کے بیرونی برآمدے کی باہر مشینوں، ٹائلز اور ایسی چیزوں کا ڈھیر لگا تھا۔ وہ اسکول سے آئی تو سارے لان میں افراتفری دیکھی۔ کار پورچ میں کھڑی کر کے وہ باہر نکلی اور ایک نظر انیکسی پر ڈال کر اندر چلی گئی۔ وہ نظر خاصی بے نیاز اور بے پرواہ سی تھی۔ انیکسی کے برآمدے میں کاشان کے ساتھ کھڑے ابا میاں نے تاثر سے اس کی نظر دیکھی اور سر جھٹک کر کاشان سے بات کرنے لگے۔ وہ بات جو ڈرائیو وے میں گاڑی داخل ہوتے دیکھ کر انہوں نے ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہ آتے ہی سو گئی، کھانا نہیں کھایا، سو شام میں جب وہ کچن میں کھڑی مائکرو ویو میں کھانا گرم کر رہی تھی، ابا میاں اور کاشان محو گفتگو انداز میں اندر داخل ہوئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کیسے ہو کاشان، اور تب سے نہیں گئے یا دوبارہ آئے ہو؟ ابا میاں بھی تمہیں خواہ مخواہ تکلیف دیتے رہتے ہیں، اتنے ہلکان مت ہوا کرو، وہ بہت شائستگی سے کہتی، ساتھ ساتھ کئی کام نپٹا رہی تھی۔ کھانا اس نے نکال کر الگ رکھ دیا تھا، اب فریزر سے کباب، رول، سموسے نکال رہی تھی۔ یہ تو میرا فرض ہے لالا رخ، اور آپ ٹھیک ہیں؟ وہ دھیرے سے ہنس کر بولا اور ابا میاں کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ لاکھ انکار کرتا مگر ابا میاں اسے پرتکلف سے چائے پلوائے بغیر جانے نہیں دیتے۔ فرض تو خیر کسی اور کا تھا۔ وہ فرائی پین میں تیل انڈیلتے ہوئے ہولے سے بڑبڑائی۔ کاشان نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ گردن ذرا سی ترچھی کیے تیل ڈال رہی تھی۔ اس کی نگاہیں تیل کی گرتی دھار پر تھیں۔ چہرے پر وہی ازلی سکون تھا۔ اس کی ان ٹھہری ہوئی باتوں کے سب عادی تھے، پھر بھی ہر بار کاشان چونک جاتا تھا، لیکن پھر سر جھٹک کر پیچھے کام میں مگن ہو گیا۔ بس ایک ہفتے کا کام ہے، آپ سر پر رہیں گے تو 6 دن میں ہی ختم ہو جائے گا، ورنہ 6 ہفتے لگائیں گے یہ لوگ۔ میں ڈیلی چکر لگاتا رہوں گا۔ یہ بندہ اچھا ہے، کام ٹھیک سے کرے گا۔ لالا رخ نے تیل کی سطح کو دیکھا، اس میں بلبلے بننے لگے، بہت ننھے، قریباً نادیدہ بلبلے۔ اس نے جمے ہوئے کچے رول اٹھائے اور ایک ایک کر کے تیل میں ڈالنے لگی۔ ہر رول کے گرتے ہی شڑر شڑر کی آوازیں بلند ہوتی اور انگنت بلبلے سفید رول سے علیحدہ ہوتے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تمام کمروں کو وہی پرانے آف وائٹ کی بجائے کسی اور رنگ میں پینٹ کرواؤں۔ تم کیا کہتے ہو؟ بالکل انکل، جیسے ہمارے لیونگ روم کا پینٹ ہے، ایک دیوار گہری سی گرین تو باقی تینوں بہت ہلکی سی گرین۔ اس طرح کے شیڈز اچھے لگیں گے۔ دوسرے چولہے پر اس نے توے کو چکنا کر کے کباب تلنے شروع کر دیے، پھینٹے ہوئے انڈے میں لتھڑے کباب۔ وہ گرم توے پر رکھتی، رول اب ایک طرف سے سنہری ہونے لگے تھے۔ اس نے کفگیر سے ان کو پلٹ دیا، ان کا کھانا ایک طرف ڈھکا، اب ٹھنڈا ہونے لگا تھا۔ ہاں یہی بہتر رہے گا، کل فیاض سے کہنا آ کر سپلٹ اور LCD کی فٹنگ کر دیں۔ چائے کو دم آ رہا تھا، وہ دونوں باتوں میں مشغول تھے۔ لالا رخ سنہری سنہری تلے ہوئے رول، سموسے اور کباب الگ الگ پلیٹوں میں نکالنے لگی تھی۔ پھر اس نے کیبنٹ سے کوکیز کا جار نکالا اور کوکیز پلیٹ میں سیٹ کی۔ فریش چاکلیٹ کیک فریج میں رکھا تھا، اس نے وہ بھی ساتھ میز پر رکھا اور چائے پیالیوں میں ڈالنے لگی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے اور چہرہ بالکل بے تاثر۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اس لڑکے کا؟ ابا میاں ایک کوکی چکھتے ہوئے جیسے یاد کر کے پوچھنے لگے۔ فرحاد تیمور۔ اگلے سوموار تک تو آ جائے گا نا؟ جی، یہاں کسی ہوٹل میں رہ رہا ہے ابھی، اچھا بندہ ہے، میں ملا تھا، ابا کے ایک دوست کا بیٹا ہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ انیکسی کرائے پر چڑھانی ہے تو ہم نے اسے کہہ دیا، وہ گھر ہی ڈھونڈ رہا تھا، مگر آپ تو جانتے ہیں اکیلے بندے کو پورشن آسانی سے نہیں ملتا۔ اسی پل ٹن کی آواز کے ساتھ وال کلاک نے 6 بجائے تھے۔
लाला रुक के तेजी से हरकत करते हाथ थमे। इसने चौंक कर घड़ियाल को देखा और फिर एकदम सब कुछ वहीं छोड़कर तेजी से बाहर निकल गई। चंद लम्हों बाद वो सिंक के पीछे बनी दीवार गिर खिड़की से जो लॉन में खुलती थी ड्राइवर पर तेज तेज कदमों से चलती गेट की तरफ जाती दिखाई दी। काशान और अब्बा मियाँ इसी तरह बातें करते रहे। इन्होंने एक दफा भी मुड़कर लाला रुख को नहीं देखा था। इन्हें पता था वो किधर जा रही है। इन्हें पता था कि वो रोज शाम को 6 बजे किधर जाती है। इन्हें यह भी पता था कि वो पिछले 8 बरसों से रोज शाम को 6 बजे इधर जाया करती थी। और इन्हें यह भी पता था कि ठीक 10 मिनट बाद जब वो वापस आएगी तो इसके चेहरे पर 8 बरसों की थकान रकम होगी। इसलिए इसे जाते और वापस आते देखने से वो गुरेज कर गया था कि इनका दिल इसे यूं देखकर बहुत अंदर तक कट जाता था। अब्बा मियाँ, वो कतई खफगी से इन्हें आवाजें देती अनेक्सी के बरामदे तक आई थी। बरामदे के सतून के पास खड़े होकर इसने देखा अंदर को जाता दरवाजा पूरा खुला था और अब्बा मियाँ लाउंज में खड़े नूरा और असगर को हिदायत दे रहे थे। यह शायद इनके काम में कीड़े निकालते हुए खफा हो रहे थे। नूरा अपने 14 साल बेटे असगर के साथ भाग भाग कर काम निपटा रही थी। अनेक्सी रंगो रोगन और नए पालिश शुदा फर्नीचर से चमक उठी थी। लाला रुख बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई। बरामदे में जहां पहले चिप्स का काम था अब वहां सफेद लश लश चमकता मार्बल था। अंदर एक बेडरूम, अटैच बाथ, किचन और एक लिविंग रूम था। इसने लिविंग रूम की चौखट पर खड़े होकर सरसरी सा अंदर देखा। वहां से सारे घर का मंजर दिखाई देता था। सब जगह सफेद मार्बल का काम हुआ था। लॉन्ग लिविंग रूम की एक दीवार गहरी से ग्रीन और बाकी हल्की ग्रीन थी। अंदर बेडरूम के खुले दरवाजे से भी यूं ही पीच कलर के दोनों शेड्स दीवारों पर झांक रहे थे। अब्बा मियाँ, इसने इन्हें पुकारा। जी मोहतरमा, फरमाएं। वो नूरा को बरहमी से कुछ कहते कहते बैठे। दवाई ली आपने? नहीं, और ना ही मेरा मूड है। वो सख्त खफा लग रहे थे। मूड हो या ना हो, ये पकड़ें और खाएं। इसने टैबलेट और पानी का गिलास इनके हाथ में थमाया। हटाओ, मुझे नहीं लेनी थी दवा। आजिज आ चुका हूं मैं इन दवाओं से। इन्होंने उठाकर गिलास वापस इसे थमाना चाहा मगर वो 2 कदम पीछे को हट गई। नहीं खानी तो ना खाएं। मैं यही गिलास उठाकर आपकी इसी नई पेंट शुदा दीवार पर दे मारूंगी तो आपको याद आएगा कि लाला रुख कौन है। मुझे याद है लाला रुख कौन है। इन्होंने खफगी से इसे देखते हुए दवाई निगली और पानी का गिलास इसे वापस थमाया। तुमने नेक्सी की तारीफ नहीं की। इन्हें दफ्तन याद है। हाँ, अच्छी लग रही है। इसने इसी ठहराव से कहा। वो जानते थे कि इसने बगैर किसी जज्बात एहसास के ये फिक्रा अदा किया है। गैर दिलचस्पी, बेनियाजी और संजीदगी। वो 8 साल से लाला के इसी चेहरे के आदी हो चुके थे। फिर भी हर बार ये चेहरे एक नए दुख से रोशनास कराता था। इसके चेहरे में इन्हें और बहुत कुछ याद आने लगा था। किरायादार 2-4 रोज में आ जाएगा। इन्होंने इसकी दिलचस्पी पैदा करने की एक नाकाम सी कोशिश की थी। वो सर हिलाकर वापस जाने के लिए पलट गई। किधर? वो जानते थे कि मगरिब के करीब वो कहाँ जा रही होगी। फिर भी पूछ बैठे एक नए दुख से रोशनास होने के लिए। खाना बनाने। वो मुड़कर बोली। इसकी आंखों में संजीदगी थी और वो 2 लफ्जी फिक्रा इनके बहुत कुछ याद करवा गया था। जाओ खाना बनाओ। वो धीरे से बोले और रुख फेर गए। इन दोनों का खाना नूरा दोपहर से पहले पहले बना लेती थी जो रात तक पूरा होता था। मगर हर शाम लाला रुख एक बर्तन में अलहदा खाना तैयार करती। वो इस रियाजत की आदी थी और जानते थे। वो बरामदे की सीढ़ियां उतरकर चली गई। अब्बा मियाँ ने एक नजर इसे जाते देखा और फिर आंख के किनारे को उंगली से पूंजा। लाला रुख इनकी तरफ नहीं रोती थी। इनकी तरह नहीं रोती थी। वो चुपचाप अपना काम किए जाती। कभी कभी इनका दिल करता था कि वो रोए जोर जोर से ऊंचा ऊंचा और अंदर का गुबार बाहर निकाल ले मगर वो रोती नहीं थी और इन्हें लगता था कि ये आंसू इसके अंदर जमा होकर एक समुंदर बन जाएंगे और एक दिन इसको बहा कर ले जाएंगे। और अब्बा मियाँ को इस दिन से बहुत डर लगता था। आतिशदान में आग जल रही थी। लाला रुख इसके करीब कुर्सी डाले बैठी घुटनों में मैगजीन रखे बहुत इनमाक से पढ़ रही थी। इसके बाल कैचर में मुकीद थे और वो पाँव ऊपर को समेटे बैठी थी। अब्बा मियाँ बड़े सोफे पर बैठे रिमोट पकड़े चैनल बदल रहे थे। वो किसी एक चैनल पर ठहर ही नहीं रहे थे। बार बार बटन दबाते आवाजों का सिलसिला शुरू होता, फिर चैनल बदलने से 2 सेकंड के लिए थमता, फिर दोबारा शुरू होता। यह चक्कर काफी देर से जारी था। आपका किराएदार नहीं आया? लाला रुख ने मैगजीन का सफा पलटते हुए सरसरी सा पूछा। वो जानते थे कि वो सिर्फ बात बराए बात पूछ रही है। नहीं, शायद कल तक आ जाए। लाउंज में
खामोशी छा गई। चैनल बदलने से टूटने जुड़ने वाला शोर सुनाई देने लगा। आज इसका फोन आया था, इन्होंने कहा तो इसने बुरी तरह से चौंक कर सर उठाया। किसका? फरहाद का। इसी किराएदार का? वो टीवी पर निगाहें जमाए कह रहे थे। सो इन्होंने लाला के ढीले पड़ते असाब को नहीं देखा था। अच्छा, वो बेदिली से मैगजीन की जानी मतवज्जा हुई। मुझे बात करने के अंदाज से तो काफी सुलझा हुआ लगा। कराची में घर है इसका, माँ बाप का इकलौता है, शादी अभी की नहीं है और बाप की डेथ के बाद माँ को कराची में ही होती है। कह रहा था कि कुछ अरसे बाद माँ भी इधर आ जाएगी। वो पढ़ती रही, इंजीनियर है, मेकाट्रॉनिक्स में मिक मास्टर से पढ़ा है। अच्छा, आजकल यहाँ इस्लामाबाद के किसी होटल में रह रहा है, ब्लू एरिया के करीब। इन्हें लगा वो इनके बात सुन भी नहीं रही। इसके आने से रौनक हो जाएगी। मुमकिन सा जवाब था। मैंने इसे कह दिया है कि वो दोपहर और रात का खाना हमारे साथ खाएगा और इस मामले में वो हमारा मेहमान होगा, ना कि किराएदार। क्या जरूरत है किसी अजनबी को घर में दाखिल करने की? इनकी पेशानी पर जरा सा बल पड़ा। अजनबी को अपना बनते देर नहीं लगती। बाज अजनबी बहुत आराम से करीब आ जाते हैं और बाज अपने बहुत आराम से बहुत दूर चले जाते हैं। इसकी निगाह मैगजीन से फिसलती हुई दहकते कोयलों पर जा टिकी थी। सुर्ख होते कोयलों से नन्ही मुन्नी चिंगारियां उठकर फिजा में गुम हो रही थी। अपनी मर्जी से कौन दूर जाता है लाला? ये तो किस्मत होती है जो दाव खेल जाती है और इंसान को पता भी नहीं चलता। हर दाव किस्मत नहीं खेलती। अब मियाँ, बाज दाव इंसान भी खेल जाते हैं और इंसानों के साथ, और सबसे मोहलिक दाव तो यही होते हैं। फिर हम सारी उम्र इसी लकीर को पीटते रहते हैं, बच्चों की तरह रोते रहते हैं, मगर हाथ कुछ नहीं आता। हम तही दामान रह जाते हैं। वो दहकते कोयलों को देखती कहती जा रही थी। अब्बा मियाँ ने भीगी आंखों से इसे देखा। वो बोलती कम थी और जब बोलती थी तो ऐसी ही बातें करती थी। सब्र करो लाला, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। सब्र? वो होले से बड़बड़े। सब्र ही तो कर रही हूँ अब्बा मियाँ, सब्र शिकवा ना करने को कहते हैं और मैं वही तो कर रही हूँ। दोनों के दरमियान तवील खामोशी थी। बस पस मंजर में न्यूज चैनल की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, मगर इसे सुन कोई नहीं रहा था। अब्बा मियाँ, इसने आतिशदान को देखते जैसे बहुत जोर से पुकारा। मैं किसी को नहीं माफ करूंगी अब्बा मियाँ। मैं हशर के दिन एक एक का गिरबान पकड़ूंगी। आज तो वो बच गए हैं, उस दिन कोई नहीं बच सकेगा। उस दिन इनको चुन चुनकर ऐसी आग में डाला जाएगा कि जिसमें इन्होंने मुझे डाला। मेरे सब्र की आग इन्हें राख कर देगी। अब मियाँ, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। वो कोयलों की सुर्खी से आई को देखती बेखुदी के आलम में कहती जा रही थी। अब्बा मियाँ चुपचाप इसे देखे गए। माफ तो वो भी नहीं कर सकते थे, ना करेंगे, ये वो जानते थे। फिर भी वो ऐसी बातें करती थी, इनके दिल पर छाया बोझ बढ़ जाता। खुदा जाने इस शब की सहर कब तुलू होगी। चिकन बिरयानी की खुशबू सारे किचन में फैली हुई थी। वो एहतियात से वजन देकर पतीले का ढक्कन बंद कर रही थी। अभी दम आ जाएगा तब तक वो रायता तैयार करेगी। सब्जियां सामने निकली रखी थी, बस इनको काटना था, दही पहनना था। इसने जल्दी जल्दी रायता तैयार किया, इसे बड़े लंच बॉक्स में डालकर पैक किया। दम आ चुका था। पतीले को नूरा ने कपड़े में लपेट दिया था। अब इसे गाड़ी में रख दो, मैं आ रही हूँ। वो सिंक की टूटी से हाथ धोते हुए बोली तो नूरा सर हिलाकर बाहर चली गई। वो पर्स और चाबियां उठाए लाउंज में आई तो आतिशदान के करीब शतरंज की छोटी मेज बिछी थी। अब्बा मियाँ और रजा अंकल आमने सामने बैठे हुए थे। अब्बा मियाँ ने अपने प्यादे को उंगलियों में पकड़ रखा था और लब दांतों से दबाए हुए बहुत गौर से बिसात को देख रहे थे। रजा अंकल, आप कब आए? इसने इनकी आमद की कोई आहट नहीं सुनी थी। जब भी जरा हैरत से कहती हुई इनके करीब आई। जब आप अपना रोजाना का पतीला बनाने में मगन थी। वो सर उठाकर मुस्कुराकर इसे देखने लगी। तभी, खैर, मगर आप तो मुझे स्टाम्प पर लिखकर नहीं दे रहे कि अब आप नहीं आएंगे। वो इरादा मैंने चंद रोज के लिए मुलतवी कर दिया है। और ऐसा क्यों किया? वो सामने सोफे पर बैठी झुककर सैंडल के स्ट्रैप बंद करने में मगन थी। तुम्हारे इस अब्बा मियाँ की मोहब्बत खींच लाती है, या यूं कहें कि शतरंज की मोहब्बत खींच लाती है। अब ये तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या समझो। अच्छा, मैं चलती हूँ। वो स्टेप्स बंद करके उठी और
परस उठाकर कंधे पर लटकाया। किधर? रजा अंकल जानते थे, मगर कभी कभी यूं ही सवाल कर, यतीम खाने जा रही हूँ खाना देने। फिर रुककर अब्बा मियाँ को देखा। आप खाएंगे? बिरयानी है। हालांकि वो इनका जवाब जानती थी, फिर भी पूछ ही लिया। अब्बा मियाँ को बिरयानी बहुत मरगूब थी। नहीं, हमारा खाना बहुत है, तुम वही दे आओ। बहुत बेहतर। वो दरवाजे के तरफ बढ़ गई। रजा अंकल इसे जाते देखते रहे। कुछ सोचकर अचानक इसे पुकारा, सुनो लाला। वो दरवाजा खोलते खोलते पलटी। जी वही ठहराओ। बड़ा संजीदा अंदाज जिसमें बरसों की मुसाफत की धूल जमी हुई थी। तुम थकती नहीं हो लाला रुख? जैसे आपको शतरंज नहीं थकाती, ऐसे ही मुझे मेरा काम नहीं थकाता। हर शख्स की एक इबादत होती है और ये काम मेरी इबादत बन चुका है रजा अंकल। फिर इबादत में थकावट कैसी? इसने एक गहरी सांस ली। वो सर हिलाकर गोया लाजवाब से हो गए थे। अल्लाह हाफिज, वो धीरे से कहकर बाहर निकल गई। रजा अंकल एक अफसुर्दा सी सांस बाहर को निकाले वापस बसात की तरफ पलटे। इनको भी काटो, ये इधर से भी उखाड़ो और गमले के पीछे से भी। वो हस्बे आदत नूरा के सर पर खड़े होकर क्यारियों के काट झांट करवा रहे थे। हफ्ते का दिन था और इसका आज ऑफ होता था, सो वो इन 2 छुट्टियों में घर के सारे नजरअंदाज किए जाने वाले काम किया करती थी। माली आज फिर नहीं आया था। नहीं बीबी, कल कह रहा था कि इसकी दादी फोत हो गई हैं, गाँव जा रहा है। करीबन 3री दफा फोत हुई हैं इसकी दादी, इसको याद करवा देना। मैंने कहा था, पर वो कह रहा था कि दादे को शादियों का बहुत शौक था। नूरा कैंची तेज तेज चलाती पत्ते काट रही थी। जाने दो नूरा, इसका दादा शायद 3 साल कबल पहली दफा फोत हो चुका है। कल तो एतवार है, अब सोमवार को ही आएगा। इससे कहना शाम में मुझसे मिलकर जाए, वरना मैं इसके दादे से भी बात करूंगी। अब वो हाथ में पाइप पकड़े बारी बारी गमलों को पानी दे रही थी। पानी की धार से गमलों की मिट्टी लबालब भर जाती तो वो पाइप का रुख दूसरे गमले की तरफ कर देती। गमलों और क्यारियों में उगे पौधों पर से धूल उतरने लगी थी। लहलहाता हुआ सबज रंग निखर गया था। सारे लॉन में गीली मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू फैली थी। बारिश के बाद की खुशबू बहुत आसमान धुल कर साफ हो जाता था। पानी भी कितनी मुकद्दस है बीबी, हर चीज को पाक कर देता है, सारी धूल और गर्द बहा ले जाता है। नूरा कैंची की नोक से मिट्टी में उगी खुरदरू जड़ी बूटियों उखाड़ते हुए बोली थी। वो अक्सर यूं ही फलसफाना बातें किया करती थी। इसकी बेटी 2 दफा बेवा होकर बहुत दिक्कतों से 3री दफा ब्याही गई थी। छोटी दोनों बेटियां पैदाइशी मजदूर थी, बस एक बेटा ही था जो इसका सहारा रह गया था। हालात ने इसे अपना ऐसा बना दिया था। पानी हर शय नहीं धो सकता नूरा, ये जख्म नहीं धो सकता, ये दिल के दाग और आग के जले निशान नहीं धो सकता, मगर राख तो बहाकर ले जाता है ना बीबी। वो जरा सा चौंकी, पाइप हाथ में ढीला पड़ा। धार का रुख बदल गया। पानी ने इसके पांचों को भिगोया तो इसने फौरन पाइप सीधा किया। बहुत सोचती रहती हो तुम नूरा। बस बीबी, बंदा जो सोचे अच्छा सोचे, वरना दिमाग खोखला होने लगता है। ये वाली भी निकाल दूं? इसने इस बात में गर्दन हिलाई। नूरा सर झुकाए मगन से काम कर रही थी। दफतन किसी आहट पर सर उठाया और जोर से हाथ हिलाया। पड़े। इसने किसी शय को दूर भगाना चाहा। लाला रुख ने गर्दन मोड़कर देखा। दीवार के मंडेर से एक बलूंगड़ा दरख्त पर फलांगता नीचे उतर रहा था। परे हट। नूरा इसे भगाने को उठने लगी। क्या कर रही हो? मत भगाओ इसे। वो पाइप क्यारी में डालकर खफगी से कहती बिल्ली के बच्चे की तरफ आई जो दरख्त के तने के साथ चौकन्ना सा बैठा था। क्यों इस बेजुबान को भगा रही हो? ऐसे किसी को दुत्कारते नहीं है। वो आगे बढ़ी और पंजों के बल घास पर बैठते हुए की आवाज निकालकर हाथ बढ़ाए कि बलूंगड़ा इसके करीब आया। इसी पल खुले गेट से कोई अंदर दाखिल हुआ। वो घास पर पंजों के बल बैठी बिल्ली को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थी। वो जो कोई भी था रुक कर देखने लगा। मैं तो बीबी इसीलिए कि पता नहीं जी किसकी बिल्ली है, ख्वामख्वाह घर में क्यों घुसाएं, गंद करेगी। नूरा शर्मिंदा हुई। जानती थी कि लाला रुख को ऐसी बातें कितनी बुरी लगती हैं, फिर भी कोताही कर जाती थी। हमारे घर इस नन्हे से बच्चे के लिए छोटा तो नहीं है। नूरा इधर आओ मेरे पास। बलूंगड़ा इसके हाथ को सूंघता इसके करीब आ गया था। इसने प्यार से इसकी फर सहलाते हुए इसे बाजू में भर लिया था। आइंदा कोई दरवाजे पर आए तो इसे दुत्कारना नहीं। बेघर को
पनाह दे देनी चाहिए। जाने इसे अपने ठिकाने का पता भी है या रास्ता भूल गया है। वो इसे बाजू में लिए प्यार कर रही थी। बिल्लियां रास्ता कभी नहीं भूलती बीबी, इनको मीलों दूर भी छोड़ाओ या फिर भी अपने घर वापस आ जाती हैं। बलूंगड़े की नरम खाल सहलाते हुए इसकी उंगलियां लम्हे भर को थमी थी। इसकी आंखों में एक साया सा लहराया था। काश इंसान भी बिल्ली जैसे होते। नूरा नूरा चंद लम्हे खामोश रही, फिर एकदम से उठते हुए लाला रुख का कंधा हिलाया। बीबी साहब, इसने चौंक कर सर उठाया। गेट के साथ कोई खड़ा था और ऊंचा लंबा स्मार्ट सा शख्स, जीन्स के ऊपर ग्रे जैकेट में मलबूस। इसके कदमों के करीब दो भारी भरकम सूटकेस रखे हुए थे। वो बलूंगड़े को बाजू में लिए मुवारिद को देखते हुए उठी। इसकी आंखों में अचंबा भरा था। अस्सलाम वालेकुम। इनको अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर वो कदरे गड़बड़ा गया। वालेकुम अस्सलाम। इसने इन्हीं संजीदा तासरात के साथ सर हिलाया। आप? मैं फरहाद हूँ, फरहाद तैमूर। यजदानी साहब से बात हुई थी इनकी एनेक्सी किराए पर लेने के लिए। वो संभल कर अब खुश दिली से बता रहा था। अच्छा, इसने सर हिला दिया। अब्बा मियाँ का नया किराएदार। यही सोचकर वो नूरा की तरफ पलटी। इनको अनेक्सी में ले जाओ। चाबियों का गुच्छा अनेक्सी के बरामदे में मेज पर रखा है। वो फिर से बिल्ली की तरफ मुतवज्जा होगी जो अब इनके हाथ की पुश्त चाट रही थी। यजदानी साहब घर पर हैं? नूरा के पीछे जाने के बजाय वो रुक कर जरा झिझक कर पूछने लगा। नहीं। वो बिल्ली को देखती इनकी पुश्त पर हाथ फेर रही थी। वो चंद लम्हे लब काटता रहा, फिर पलट गया। नूरा के आकम में अनेक्सी की सीढ़ियां चढ़ते हुए इसने एक दफा पलट कर इसे जरूर देखा था। वो अभी तक बिल्ली को प्यार कर रही थी। वो बरामदे का दरवाजा खोल कर बाहर निकला। इधर उधर गर्दन घुमाकर देखा। वो सामने लॉन में कुर्सी पर बैठी मगन से अखबार के सफ़े पलट रही थी। सादा शलवार कमीज और ऊपर शानों पर फैली शाल, कंधों तक आते बाल केचर में आधे बंधे हुए थे। वो दुनिया भर से लाताल्लुक सी लग रही थी। वो बरामदे की सीढ़ियां उतर कर लंबे लंबे ढक बढ़ता लान की तरफ आ गया था। सुबह बखैर। इसके मुकाबिल पड़ी कुर्सी के पुष्ट पर हाथ रखे वो मुस्कुरा कर बोला तो लाला रुख ने जरा चौंक कर सर उठाया। सुबह बखैर। वो सरसरी सा इसे देखकर फिर से अखबार की तरफ मुतवज्जा हो गया था। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इधर बैठ सकता हूँ? बैठ जाओ। वो अब इन्हमाक से अपना पसंदीदा कॉलम पढ़ रही थी। वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। मैं फरहाद हूँ, बुनियादी तौर पर एक इंजीनियर हूँ और फिलहाल इतना अच्छा घर मिलने पर बहुत खुश हूँ। नाइस। लाला रुख का चेहरा अभी तक अखबार में झुका हुआ था। रात में जल्दी सो गया था। यजदानी साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। कब तक आ जाएंगे वो? अभी आज वो अपने दोस्त के साथ किसी के घर गए हैं। दोपहर तक ही आएंगे। आपके? लाला रुख के पेशानी पर नन्ही सी सिलवट पड़ी थी, यूं जैसे इसके मुताले में मुखल होते शख्स से इसे कोफत हो रही थी। दोपहर को आकर तो वो आराम करेंगे, फिर मैं शाम को ही मिल लूंगा। वो खुद कलामी के से अंदाज में बोला। यही कर लीजिएगा। इस घर में सिर्फ आप दोनों रहते हैं। चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो बड़सबील तस्करा बोला था। जी फिलहाल। किसी और को रहने आना है क्या? इसकी बात से वो यही समझा था। लाला रुख ने जरा सा चौंक कर सर उठाया, फिर होले से सर झटका। शायद। वो चंद लम्हे खाली खाली निगाहों से इसका चेहरा देखे गए। फिर इसके चेहरे से होती इसकी निगाह भटक कर आसमान तक चली गई। इसने नफी में सर हिलाया। नहीं, किसी को नहीं आना। आप यजदानी साहब की बेटी हैं गलबन। लाला ने नफी में गर्दन हिलाई। तो फिर मैं इनकी बहू हूँ। ओह। इनकी आंखों में वाजिया हैरत उभरी थी। आपके हस्बैंड किधर हैं? वो चंद लम्हे खामोशी से इसे देखती रही, फिर धीरे से गर्दन को जंबिश दी। वो इधर नहीं है। तो किधर है? जहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता और जहाँ जाने वाले वापस नहीं आते। किसी दूसरी अनदेखी दुनिया में रह जाते हैं। वो कहते कहते कहीं खो सी गई थी। ओह, आई एम सॉरी। इनके चेहरे पर तासुब था। खैर। वो एक जोदो रंज सांस लबों से खारिज करके फिर से अखबार की तरफ मुतवज्जा हो गई। वो चंद सानिये बहुत लाल से इसे देखता रहा, फिर जरा ठहर कर बोला। कितना अर्सा हो गया है? किसको? लाला ने सर हिलाया। इसके चेहरे पर ना समझी थी। आपके हस्बैंड को? इसने लाला रुख के पेशे नजर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया था। 8 साल हो गए। यजदानी साहब के एक ही फर्जंद थे? जी। वो फिर से कॉलम पढ़ने लगी थी। वो तो बहुत दुखी होंगे। यहाँ हर शख्स दुखी है फरहाद साहब। सबको अपने अपने दुख होते हैं। खुशी तो कोई भी नहीं होता, मगर जवान औलाद का बिछड़ जाना बहुत बड़ा दुख होता है। दुख का कोई पैमाना नहीं होता कि माप ले कौन सा दुख बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। हर दुख की अपनी जगह होती है और हर शख्स को अपना दुख जमीनों आसमान से भी बड़ा लगता है। सही कहा आपने, हर दुख की अपनी जगह होती है। वो गहरी सांस लेकर बोला। सुबह की ठंडी हवा इसकी सांस में शामिल हो रही थी। बच्चे हैं आपके?
वो पूछने के बाद इसे लगा इसने कोई बहुत गलत बात कर दी हो, क्योंकि लाला रुख के चेहरे पर एकदम बहुत सा कुर्ब उभरा था। इसने झटके से गर्दन उठाकर फरहाद को देखा। लब बींचे वो जैसे बहुत कुछ जब्त कर रही थी। वो नादम हो गया। सॉरी, मैं पर्सनल हो गया, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। मेरे 2 बेटे थे, एक 5 साल का, एक 3 साल का, मगर हद से उम्रें तो नहीं देखते। वो हादसा हुआ और इन दोनों को अपने बाप के साथ बहा कर ले गया। अब अगर आपको कुछ और नहीं पूछना तो मैं जाऊं। वो अखबार को गोया पटकने वाले अंदाज में मेज पर रखकर उठी और अंदर की तरफ बढ़ने लगी। सुनिए, वो पुकारा था। वो बरामदे के सतून के करीब रुकी और पलटकर इसे देखा। अगर आपको मुलाजमों की परेशानी है तो हमारी मुलाजमा आपके सारे काम कर देगी। मैं इसे भेज देती हूँ अभी। नहीं, हाँ मतलब मेरा है, आप इसे भेज दें, मगर एक बात। वो कुर्सी से उठते हुए बोला। वो वहीं सतून के साथ रुकी खड़ी सवालिया नजरों से इसे देख रही थी। एक बात कहना थी आपसे। कहिए, मैं सुन रही हूँ। हादसों का मकसद इंसान को मजीद मजबूत बनाना होता है ताकि वो मुस्कुराना ही भूल जाए। कभी कभी इंसान को मुस्कुरा लेना चाहिए, वरना मुस्कुराहट अजनबी हो जाती है और इस अजनबियत और शनासाई के खेल में इंसान को खुद को खोने लगता है। आपकी ट्रेजेडी काबिले रकत है, मगर कभी कभी मुस्कुरा देना। लाला रुख ने एक खामोश लाताल्लुक निगाह इस पर डाली और पलटकर बरामदे की जीने चढ़ती गई। वो खामोशी से इसे जाते हुए देखता रहा। चाय, इसने यकलफ्ती इतला देते हुए चाय का मग अब्बा मियाँ के सोफे के हत्थे पर रखा और अपना मग लिया आतिशदान के करीब बिछी झूले वाली कुर्सी पर बैठ गई। किराएदार से मुलाकात हुई तुम्हारी? वो रिमोट से टीवी ऑन करते हुए याद आने पर पूछने लगे। जी, कैसा लगता है? पता नहीं, मुझे इंसानों की पहचान नहीं है। सब एक से नहीं होते लाला रुख। इन्होंने नरमी से इसे समझाना चाहा। मुझे तो सब एक से लगते हैं अब्बा मियाँ, क्योंकि जो मेरे साथ जुल्म कर गए मैंने इनके चेहरे नहीं देखे, सो मुझे हर चेहरे के पीछे इन्हीं चेहरों का गुमान होता है। वो चाय के घूंट बढ़ते हुए बहुत धीमी आवाज में बोली थी। अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। इनसे हिसाब ले भी लिया गया तो मुझे क्या मिलेगा अब्बा मियाँ? इन पर कयामत भी टूट पड़े तो मुझे क्या पता चलेगा कि मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ। फिर भी हिसाब तो इनका होगा ना, इस दुनिया में ना सही अगली दुनिया में सही। कयामत बहुत दूर है अब्बा मियाँ। हर शख्स की कयामत इसकी मौत के साथ आ जाती है। इंतजार करो, इनकी कयामत भी आएगी। लाला रुख ने जवाब नहीं दिया, चुपचाप चाय की गूंद बढ़ती रही। जानती थी कि अब्बा मियाँ जो बातें कर रहे हैं वो इसे कम और खुद को तसल्ली दिलाने के लिए ज्यादा थी। आइंदा अंदर आ सकता हूँ? अध खुले दरवाजे से मध्यम दस्तक के साथ वो बोला तो इन दोनों ने सर उठाकर देखा। फरहाद तैमूर चौखट में खड़ा था, जीन्स पर स्वेटर पहने, हमेशा की तरह फ्रेश और वजीह। आओ आओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अभी नूरा को बुलाने ही लगा था, कब से भेजा हुआ है, पलट कर नहीं आई। अब्बा मियाँ गर्मजोशी से उठे और आगे बढ़कर इससे मुसाफा किया। वो बहुत अदब से झुककर इनसे मिला था। लाला रुख ने एक लाताल्लुक से निगाह इस पर डाली और टीवी स्क्रीन को देखते हुए चाय का घूंट बढ़ती रही। बस शॉवर लेने में देर हो गई, दोपहर में इसलिए नहीं आ सका कि आपकी थकन का ख्याल था, बहुत माजरत। वो इनके साथ बड़े सोफे पर ही बैठ गया। अलबत्ता बैठते हुए इसकी एक नजर लाला रुख पर जरूर डाली थी। अस्सलाम वालेकुम, साथ ही शाइस्तगी से सलाम भी किया, जिसका जवाब इसने सर की चंबिश के साथ जेरे लब ऐसे दिया कि वो देख टीवी को ही रही थी। तो मियाँ नेक्सी कैसे लगी? बहुत जबरदस्त, आपने इसकी रेनोवेशन पर बहुत मेहनत की है। मैं खुद को आपके जेरे बार महसूस कर रहा हूँ। अरे ये तो मेरा फर्ज था। मुझे खुशी है कि तुम्हें घर पसंद आया। अब्बा मियाँ वाकईतन बहुत खुश थे। लाला रुख की निगाहें टीवी स्क्रीन पर जमी थी। पसंद तो छोटा लफ्ज है, और ना सिर्फ घर बल्कि मुझे एक घर के खाली से मकीन भी बहुत पसंद आए हैं। अच्छा, अब्बा मियाँ हंसते हुए बोले, मैंने मम्मी को सुबह ही फोन कर दिया था कि अब वो जल्द अज जल्द अपनी बहन की खिदमतों से फारिग होकर मेरे पास इधर ही आ जाए। मेरी खाला असल में बीमार है और इनके बच्चे नहीं है तो मम्मी इन्हीं के पास रह रही हैं। ओह आई सी, अल्लाह इनको शफा दे। कब तक आ जाएंगी तुम्हारी वालदा? बस अंकल, 1-1.5 महीने तक खाला की ओपन हार्ट सर्जरी होनी है। जैसे ही वो सेहतयाब होंगी मम्मी वापस आ जाएंगी। यजदानी साहब से
अब अंकल पर आ गया था, मगर लाला रुख इन दोनों से कतई बेनियाजी से टीवी देख रही थी। चलो ये तो अच्छा हो जाएगा। मैं इस घर में रौनक चाहता था और तुम्हारी फैमिली से खूब रौनक हो जाएगी, इसकी तो आप फिक्र ही ना करें। वो धीरे से हंसा। इस पल घड़ियाल ने टन की आवाज के साथ 6 बजाए। लाला रुख चाय का मग मेज पर धर कर तेजी से उठी, हील्स पहनने और बाहर निकल गई। इसकी उजलत भरे अंदाज पर फरहाद ने गर्दन मोड़कर जरा हैरत से इसे देखा। वो लाउंज का दरवाजा पार कर गई थी और खुली खिड़की से अब गेट की तरफ जाती दिखाई दे रही थी। खैरियत? इसके अंदर अंदाज से वो जरा परेशान सा हो गया। हाँ खैरियत है। अब्बा मियाँ ने एक तासुब भरी निगाह अंदर को खींची और सर झटका। तुम्हारा ऑफिस तो यहाँ से करीब पड़ता है ना? काशान कुछ ऐसा बता रहा था। जी। वो जो परेशानी से खिड़की के बाहर देख रहा था जरा संभल कर सीधा हुआ। करीब ही है, 15 मिनट की ड्राइव है। गाड़ी है तुम्हारे पास? अभी नहीं है, बस 2-4 दिन तक निकलवा लूंगा, तब तक तुम मेरी गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हो। और प्लीज अब तकल्लुफ ना करना, अगर तुम मेरी गाड़ी इस्तेमाल करोगे तो मुझे खुशी होगी। जी मैं बिल्कुल तकल्लुफ नहीं करूंगा, जब भी जरूरत पड़ी डीड बनकर फौरन चाबी मांगने आ जाऊंगा। इसी पर लाउंज का दरवाजा खोलकर लाला रुख अंदर आती दिखाई दी। फरहाद ने जरा चौंक कर इसे देखा था। इसके चेहरे के तासरात वो नहीं थे जो जाते समय इसने देखे थे। अब वहां थकन थी, सिर्फ और सिर्फ थकन। शायद कुर्ब भी था, नारसाई का कुर्ब। वो कुछ कहे बिना अंदर अपने कमरे की सिमत बढ़ गई थी। फरहाद ने देखा अब्बा मियां ने तासुब से सर झटका था। लाला रुख का चाय का अध भरा मग यूं ही मेज पर रखा था। चाय अब ठंडी हो चुकी थी। कागज पर बॉल पॉइंट चलने की तेज तेज आवाज कमरे में सुनाई दे रही थी। वो कॉपियों का एक ढेर सामने रखे बैठी थी और हाथ में पकड़ी कॉपी को सुर्ख पेन से चेक कर रही थी। आज स्कूल में बच्चों का टेस्ट हुआ था और कॉपियों का अंबार लग गया था, जैसे वो चेक करने अपने साथ ले आई थी। घंटा हो गया था इसे कॉपियां चेक करते हुए और अभी बस आधी हुई थी। दफतन इसे किसी तोते के बोलने की आवाज आई, जैसे दो परिंदे बाआवाज़ बुलंद चहचहा रहे हों। इसने चौंक कर सर उठाया। सामने खिड़की के पर्दे हटे थे। लॉन का मंजर वाज़ह दिखाई दे रहा था। क्यारियों के करीब नूरा का बेटा असगर खड़ा एक बड़े से पिंजरे को दरख्त की मोटी सी शाख के साथ बांध रहा था। पिंजरे में 2 खूबसूरत से बड़े बड़े तोते थे। वो एकदम कापी फेंक कर उठी और तेजी से बाहर आई। लॉन्च का दरवाजा पार करके वो भागते हुए लॉन में पहुंची थी। असगर, असगर। जितने गुस्से से इसने असगर को पुकारा था, असगर हड़बड़ा कर पलटा था। पिंजरा इसके हाथ से छूटते छूटते बचा था। बमुश्किल इसने इसे संभाला था। जी बाजी। वो जरा सा सहम गया था। ये क्या कर रहे हो? वो गुस्से से कहती तेजी से इसके करीब आई थी। वो जी ये पिंजरा बांध रहा था ऊपर, कोई जरूरत नहीं है। और ये तोते कहाँ से पकड़े हैं? वो कमर पर हाथ रख के जिरा कर रही थी। मैंने नहीं पकड़ी, कसम ले लें बाजी। अच्छा खोलो पिंजरा और छोड़ो इनको। जी। वो बेचारा हक्का बक्का रह गया था। मैं कह रही हूँ कि पिंजरा खोलो और इन तोतों को उड़ाओ। पर बाजी ये तो साहब के हैं। मैं कैसे? जिसके भी हैं इन्हें पिंजरे से बाहर निकालो, वो अंदर मर जाएंगे। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? वो इसे हद दर्जा कोफत से हो रही थी। बाजी ये बाहर के तोते हैं, बहुत महंगे हैं। साहब तो मुझे जान से मार देंगे अगर मैंने वो साहब आगे। आप खुद ही बात कर लो। जी। वो हलकला कर कहता जल्दी जल्दी पिंजरा बांधने लगा। वो गुस्से से बल खाकर पलटी थी। फरहाद सामने से चला आ रहा था। शाम बखैर। मैं काफी देर से आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, सोचा जरा मुदाखलत करके इस गरीब की जान बचा लूं। मेरे तोतों से क्या दुश्मनी हो गई आपको? वो मुस्कुराते हुए इसके सामने आ खड़ा हुआ था। फरहाद साहब। इसने संजीदा निगाहों से इसका चेहरा देखा। इन तोतों को आपने पिंजरे में बंद किया है? जी। इसने सर इस बात में हिलाया। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? शौक की कोई वजह नहीं होती। वैसे ये बहुत कीमती तोते हैं, पाकिस्तानी रुपयों में 5-6 लाख से कम नहीं है। आपने इन्हें खरीदा है? लाला रुख की पेशानी पर शिकन पड़ी। जी। और तभी मैंने पूरे इस्तेहकाक से इनको इस पिंजरे में रखा हुआ है। इसने एहतजाजिया सर झटका था। जिसने खरीदा इसे खरीदने का इख्तियार ना था और जिसने बेचा इसे बेचने का इख्तियार ना था। 5-6 लाख कितनी कम कीमत लगाते हैं आप लोग किसी जीते जागते वजूद की। ये हक किसने दिया आपको कि किसी मजलूम को पकड़कर बेचते और खरीदते फिरें? जिंदगियां बकाऊ माल नहीं होती फरहाद साहब, मगर काश कि आप समझे। वो तासुफ से कहती वापस मुड़ने को थी। 1 मिनट लाला रुख। वो पीछे से पुकार उठा। ऐसे जाते हुए को पुकारने की बहुत बुरी आदत थी। लाला रुख ने जरा सी गर्दन मोड़ी। फरहाद होले से मुस्कुराया और एक हाथ से शाख से लटके पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा बड़ा था। जैसे ही खुला तोते फड़फड़ाते हुए बाहर को उड़ गए। अब खुश हैं आप? वो सीने पर बाजू लपेटते चंद कदम
چل کر اس تک آیا تھا. آپ یہ میری خوشی کی بجائے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تو اچھا تھا, کیونکہ ان کا بدلہ میں آپ کو نہیں دوں گی. وہ اسی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی. وہ یوں ہی کھڑا کتنی ہی دیر جاتے دیکھتا رہا, پھر مسکرا کر سر جھٹکا اور رینکسی کی جانب چل پڑا. اس روز وہ کسی کام سے یتیم خانے آیا تھا اور اس وقت ریسیپشن کاؤنٹر پر کوہنی ٹکائے کھڑا وہاں بیٹھے کلرک سے کچھ کہہ رہا تھا جب ایک دم رکا. اسے سامنے کوریڈور سے لالا رخ آتی دکھائی دی, سر پر دوپٹہ اوڑے, کندھے پر بیگ لیے. وہ لاتعلق سی چلتی جا رہی تھی. میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں, کلرک کو اجلت میں کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اسے پکارا. لالا رخ وہ باہر کھلنے والے گلاس ڈور کی جانب بڑھ رہی تھی. آواز پر چونک کر رکی اور ادھر ادھر گردن گھمائی. فرحاد تیز قدموں سے چلتا اس تک آ رہا تھا. لالا رخ آپ ادھر؟ میں اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا تھا. جی. وہ کندھے پر لٹکے پیرس کے سٹیپس کو پکڑے کھڑے کھڑے بولی جیسے جانے کی چلتی ہوں. مگر خیریت تھی؟ کچھ کام تھا؟ شاید اسے وضاحت سے کوفت ہو رہی تھی. کام؟ وہ چمبے سے بولا. ادھر یتیم خانے میں؟ فرحاد صاحب میں آپ کے آگے جواب دہ نہیں. وہ ذرا سخت سے لہجے میں بولی تھی. بہرحال میں یہاں کھانا دینے آئی تھی. اچھا. وہ جیسے اب بھی نہیں سمجھا تھا مگر کچھ پوچھنے سے گریز کیا. میں جاؤں؟ جی ایک منٹ. آپ گھر جا رہی ہیں؟ جی ہاں, مجھے بھی گھر ہی جانا ہے تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں. شکریہ, میرے پاس کار ہے. یہ تو اور بھی اچھی بات ہے. پھر آپ مجھے ڈراپ کر دیں. کیونکہ میرے پاس کار نہیں ہے. وہ دھیرے سے ہنسا. لالا رخ نے گہری سانس اندر کو کھینچی اور بہت ضبط سے بولی. آئیں. وہ کہہ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی. شکریہ. فرحاد مسکراتا اس کے پیچھے آیا. اس روز میں نے آپ کو کھانے کا پتیلا گاڑی میں رکھواتے دیکھا تھا. مجھے بہت تجسس ہوا تھا کہ آپ اتنا سارا کھانا کدھر لے کر جا رہی ہیں, مگر پوچھنا اچھا نہیں لگا. ادھر یتیم خانے میں آپ کو دیکھ کر بہت حیرت ہوئی, اس لیے پوچھ بیٹھا. میں ادھر ایک دوست سے ملنے آیا تھا. ریاض آغا بورڈ آف ڈائریکٹر میں سے ہیں. میں نہیں جانتی. اس نے شانے اچکا دیے تھے اور ڈرائیو کرتی رہی. آپ کیا روز یہاں کھانا لے کر آتی ہیں؟ وہ ونڈو اسکرین کی پار پھیلی گہری. وہ آپ کیا روز یہاں پر کھانا لے کر آتی ہیں؟ وہ ونڈو اسکرین کے پار پھیلی گیلی سڑک کو دیکھ رہا تھا جو رات کی تاریکی میں اسٹریٹ لائٹ سے روشن لگ رہی تھی. جی. وہ وہی مختصر جواب. اور یہ سارا کھانا آپ اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں؟ جی. اگر آپ برا نہ مانے تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیوں؟ کیا کیوں؟ اس نے ایکسیلیٹر کو دباتے ہوئے مزید کہا. اتنی محنت کیوں کرتی ہیں؟ میرا مطلب ہے ہر روز اتنی مشقت اٹھانا. آپ جاب بھی کرتی ہیں پھر یہ کام. وہ جیسے اس کے عجیب و غریب رویے کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا. فرحاد صاحب برا تو مجھے لگا ہے, لیکن چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو بتا رہی ہوں. مجھے چند بچوں کے لیے ایک وقت کا کھانا بنانے میں کوئی مشقت محسوس نہیں ہوتی. اگر میرے بیٹے میرے پاس ہوتے تو میں ان کے لیے بھی یہی کام کرتی. سو اب بھی وہی کر رہی ہوں. کالونی کے گیٹ سے گاڑی گزارتے ہوئے اس نے لب بھیجتے اس نپے تلے انداز میں کہا تھا. آپ یہ سب صرف چیریٹی کے لیے کرتی ہیں؟ وہ کار پورچ میں روک کر لاک کھول رہی تھی جب وہ پوچھ بیٹھا. لاک پر رنگتا اس کا ہاتھ تھما تھا. اس نے گردن موڑ کر فرحاد کو دیکھا. چیریٹی انسان کیوں کرتا ہے یہ جانتے ہیں آپ؟ دل کے سکون کے لیے. وہ پوچھ رہا تھا یا شاید بتا رہا تھا. پھر میں چیریٹی کے لیے نہیں کرتی کیونکہ مجھے اس سے سکون نہیں ملتا, یا شاید میں اس سے سکون نہیں چاہتی. پھر اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی ہے, مگر میری نیت شاید اتنی خالص اور بے غرض نہیں. وہ لاک کھول کر باہر نکلی. کیا آپ کسی غرض کے لیے یہ سب کرتی ہیں؟ وہ اپنی طرف سے باہر نکلا اور اپنا کھلا دروازے میں کھڑے کھڑے پوچھنے لگا. ان دونوں کے درمیان گاڑی کی چھت حائل تھی. ہاں میری غرض ہی سمجھ لے. کیسی غرض؟ فرحاد صاحب میرا خیال بہت ہو چکا. میں اس سے زیادہ کسی کو اپنے پرسنل میں انٹرفیئر کرنے کا موقع نہیں دیتی. اس نے دروازے کو لاک کیا. کھٹ کھٹ اوپر برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی. اسے پیچھے سے پکارنے کی بری عادت تھی مگر آج اس نے اسے نہیں پکارا تھا. اس کا دماغ بہت سی سوچوں کے تانے بانے الجھانے میں مگن تھا. کیا ضرورت ہے کسی اجنبی کو اپنے گھر کے اندر گھسانے کی؟ جب سے ابا میاں نے بتایا تھا کہ اس نے فرحاد کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے وہ مسلسل چیزیں ادھر ادھر پٹکتی بڑبڑاتے جا رہی تھی. ابا میاں البتہ اس کی کسی بات کا نوٹس نہیں لے رہے تھے. کیا تک بنتی ہے ایرے گہرے کو یوں گھر میں بلا کر کھانا کھلانے کی؟ میں تو چاہتا تھا کہ روز دونوں وقت کا کھانا ہمارے ساتھ کھائے, مگر بہت خوددار بچہ ہے. بہت شائستگی سے معذرت کر لی. یہ دعوت بھی یہ بمشکل قبول کی ہے اس نے تو نہ کرتا. ہم دو ٹھیک ہیں آپس میں, کافی ہیں ایک دوسرے کو. وہ برتن لگاتے ہوئے مسلسل چڑچڑی ہو رہی تھی. ابھی ہیں
हमेशा नहीं रहेंगे। हमेशा किसने देखा है अब्बा मियाँ, और शायद देखने के लिए जिंदा भी नहीं रहे। इसीलिए ये बेचारा बुढ़ा अपनी ना तमाम ख्वाहिशात अपनी जिंदगी में पूरी करना चाहता है, मगर वो लाला रुखी क्या जो अब्बा मियाँ की जज्बाती ब्लैकमेलिंग को खातिर में लाए सहूलत से कह के, अच्छे भले हैं आप और मेरी तरह सख्त जान, सो कुछ नहीं होगा हमें इतने आराम से। आखिर तुम क्यों नहीं चाहती हो कि मैं किसी मेहमान को इंटरटेन करूं, अपना बेटा समझकर किसी से अपनाइयत से मिलूं। इसने झटके से गर्दन उठाई, हाथ में पकड़े चम्मच फिसल कर कांच की प्लेटों के ढेर पर जा गिरा। जरा सी छनाछन की आवाज गूंजी थी, जैसे कांच टकराने की आवाज आती है, जैसे दिल टूटने की आवाज आती है। अब्बा मियाँ वो शदीद सदमे से चूर इनको देख रही थी। असद की जगह कोई नहीं ले सकता। आपका सिर्फ एक ही बेटा है असद, और कोई नहीं। कोई इंसान किसी की जगह नहीं ले सकता। बस जज्बे होते हैं जो जगह ले लेते हैं। तुम मेरे जज्बों पर पहरे तो नहीं लगा सकती। वो कितनी ही देर डाइनिंग टेबल के इस पार खड़ी इनको देखे गई, बेयकीनी, हैरत, शौक इसकी आंखों में रकम था। आप असद को भूल गए हैं? क्यों कोई बाप अपने बेटे को नहीं भूल सकता। मैं बस फरहाद में असद को तलाश करने लगा हूँ। वो आज़ारदा से लग रहे थे। बहुत अच्छा। इसने गुस्से से पानी का जग मेज पर रखा था। आप असद को इसी में तलाश करते रहे, मगर कल को मुझे ना कहिएगा कि मैं भी असद को इसमें ढूंढूं। वो कहकर रुकी नहीं थी, पैर पर रखती किचन की तरफ चली गई। फिर खाने पर वो खामोशी से अपना खाना खत्म करती रही। वो दोनों बातें करते रहे, मगर लाला रुख एक लफ्ज न बोली। इसकी गर्दन इतनी झुकी थी कि थोड़ी सीने को छू रही थी। फरहाद ने भी इसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा था। वो अब्बा मियाँ से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल कर रहा था, शहर के हालात से लेकर अपने बचपन के वाक़यात तक। वो बहुत बोलता था और बहुत अच्छा बोलता था। अब्बा मियाँ खूब महसूस हो रहे थे, मगर वो खामोश सर झुकाए बैठी रही। फिर स्वीट डिश के बर्तन उठाकर जब किचन में गई तो पीछे दरवाजे से होती अपने कमरे में दाखिल चली गई। ना किसी ने इसे बुलाया, ना वो खुद आई। घंटे भर बाद बाहर लाउंज में आई तो टीवी चल रहा था और अब्बा मियाँ सोफे की पुष्ट से टेक लगाए मुस्कुराते हुए टीवी स्क्रीन को देख रहे थे। सामने मेज पर रखे दो चाय के मग गवाही दे रहे थे कि चाय इनमें से ही किसी ने बनाई है, और यकीनन फरहाद ने बनाई थी, क्योंकि ये सब्ज वाले मग इसी ने कैबिनेट से निकाले होंगे। वरना अब्बा मियाँ चाय बनाते तो सामने स्टैंड पर रखे आम इस्तेमाल के कप निकालते। बाहर के बंदे को इल्म नहीं होता कि कौन सा बर्तन इस घर में कैसे इस्तेमाल होता है। इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। अब्बा मियाँ अकेले ही बैठे थे। फरहाद जा चुका था, अलबत्ता इनके परफ्यूम की बीनी बीनी खुशबू सारे में फैली हुई थी। वो सर झटकर चाय के बर्तन समेटने लगी। इसके बाद अब्बा मियाँ इसे अक्सर घर पर बुलाने लगे। वो लाख चिढ़ती, लाख खफा होती, वो असर ही नहीं लेते थे। कभी चाय पर तो कभी खाने पर वो इनके साथ शामिल होता। इसके बाद शतरंज का दौर चलता और वो दोनों घंटों बैठे बसात पर चालें चलते रहते। रजा अंकल की तबीयत जरा खराब थी तो वो इन दिनों कम ही आ रहे थे, और अगर आ भी जाते सुबह के वक्त तब तो फरहाद ऑफिस में होता। यूं रजा अंकल के ना आने से अब्बा मियाँ खासे बोर होते थे, लेकिन शाम में वो आ जाता तो इन्हें मुकम्मल वक्त देता था। इसकी रुखाई को महसूस किए बगैर आते जाते कोई छोटी सी बात कह दिया करता था। वो शुरू में तो बस इसके सलाम का जवाब देती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी बातों को हल्का हल्का जवाब देने लगी। इसे पता भी नहीं चला कब इन दोनों को फरहाद की आदत पड़ गई। रोज शाम को एक हशाश बशाश मुस्कुराते चेहरे के साथ आने वाले फरहाद को अब वो आदी होने लगे थे। लाउंज के किसी कोने में अखबार चेहरे के सामने फैलाई बैठी वो लाशऊरी तौर पर इसके कहकों और बातों की तरफ मुतवज्जा होने लगी थी। इस शाम जब घर में एक वीरान सी उदासी छाई हुई थी, इसे फरहाद का ना आना बहुत गुला था। वो रोज शाम को आ जाता था, आज पता नहीं किधर रह गया था। वो यूं ही लाउंज में कुछ देर इधर उधर चक्कर काटती रही, फिर बाहर आ गई। इतनी बामरवत तो थी नहीं कि जाकर इसका हाल पूछती, सो गेट अबूर करके बाहर कॉलोनी की सड़क के किनारे वॉक करती रही। जब वो अपने अंदर की वहशतों से तंग आ जाती तो यूं ही वॉक पर निकल जाया करती थी। आज तो इसने यतीम खाने के बच्चों का खाना भी नहीं बनाया था, पता नहीं क्यों। एक अजीब सी बेजारी हर सू छाई थी। जब वो दो एक दूसरे को काफी थे तो तीसरे को अपनी जिंदगी में दाखिल करने की क्या जरूरत थी। इसे अब्बा मियाँ पर गुस्सा आने लगा था। हैप्पी बर्थडे किसी ने एकदम इसके अकम में आकर जोर से कहा तो वो चौंक कर पलटी। वो अपनी अजली हशाश बशाश तरोताजा मुस्कुराहट के साथ सामने खड़ा था। इसके हाथ में एक हर रंग के सोसन के फूल का गुलदस्ता भी था, जिसे इसने लाला रुख की तरफ बढ़ाया। हैप्पी बर्थडे।
आपको किसने बताया कि आज मेरी बर्थडे है, आज मेरी सालगिरह है? मुताज्जुब सी इसे देखने लगी। क्यों, क्या नहीं है? है, मगर आपको किसने बताया? अब्बा मियाँ ने बताया था। मैंने सोचा कोई तोहफा लूंगा तो आप कबूल नहीं करेंगे, इसलिए फूल ले आया। फूलों से तो कोई इनकार नहीं करता। इसने गुलदस्ता बढ़ा दिया था। लाला रुख ने तजब्बे से इसे देखा और फिर फूलों को कदरे हिचकिचाकर इसने गुलदस्ता थाम लिया। बहुत शुक्रिया, मगर इसकी जरूरत नहीं थी। वो अपनी अजली संजीदगी से बोली, मगर इस संजीदगी में रुखाई नहीं थी। जरूरत क्यों नहीं थी? फूलों की जरूरत हर इंसान को होती है, और ताजगी की जरूरत इस से भी ज्यादा इंसान इंसान में फर्क होता है। ठंडी सांस लेकर बोली, फिर एकदम कलाई पर बंदी घड़ी देखी। ओह, 6 बज गए, मैं जरा आती हूँ। वो यूं ही गुलदस्ता उठाए आगे बढ़ने लगी, फिर रुककर फूलों को देखा और फिर इसे। आप ये बरामदे में रख देंगे, मैं अभी आ जाती हूँ। आखिर आप हर शाम 6 बजे कहाँ जाती हैं? वो चंबे से गोया हुआ था। फूल इसने वापस थाम लिए थे। यहाँ बरामदे में बराबर में एक ब्रिगेडियर साहब होते हैं, इनसे कुछ काम था। पूछ सकता हूँ? कैसा काम? कुछ पूछना था इनसे। ऐसा क्या है जो आपको रोज पूछना पड़ता है? लाला रुख। वो हैरान भी हुआ और उलझा भी। है कुछ, मैं अभी आती हूँ। वो पलट कर तेज तेज कदमों से चलती सड़क पर आकर आगे बढ़ गई। फरहाद हाथ में फूल पकड़े सोचती निगाहों से इसे जाते हुए देखता रहा। वो वापस आई तो फूल बरामदे की मेज पर रखे हुए थे और वो आसपास कहीं नहीं था। इसने गुलदस्ता उठाया और अंदर अपने कमरे में ले गई। खिड़की के साथ इसने वो पैक शुदा गुलदस्ता सीधा खड़ा कर दिया और फिर इन पर पानी का छिड़काव किया। वो पहले से ज्यादा ताजा लगने लगे और सारे कमरे में खुशबू बिखेर गई। वो फूलों के साथ कुर्सी डाले बैठी यूं ही इनको तकती रही, यहाँ तक कि शाम बीत गई और यतीम खाने के बच्चे इसे भूल गए। हर दिन अपने साथ नई हवा लाता और सोसन के रंगदार फूल बासी होते गए। हरे पत्ते मुरझाकर पीले भूरे पड़ गए और फूलों की टहनियां सख्त होकर अकड़ गई, मगर वो इस खिड़की में यूं ही पड़े रहे। इसे पता भी नहीं चला और इसे इनकी बासी खुशबू अच्छी लगने लगी। इस शाम अब्बा मियाँ ने इसे बताया कि फरहाद को रात से बुखार है। इसे एकदम ढेर सारे दुख ने आन घेरा। अब्बा मियाँ इसके पास चले गए तो वो किचन में लग गए। नूरा को साथ लगाए इसने सूप और खिचड़ी तैयार की, साथ चंद चीजें और भी रखी। और फिर जब नूरा ट्रे लिए नैक्सी की तरफ जा रही थी तो वो इसके साथ थी। अब्बा मियाँ के साथ अनेक्सी के लिविंग रूम में सोफे पर बैठा, चेहरे से ही नकाहत आया थी, आंखें जरा सा सुर्ख थी। वो बहुत धीमे लहजे में इनकी बात का जवाब दे रहा था। जब वो नूरा के पीछे चलते हुए अंदर आ, इसकी बात दरमियान में ही रह गई। वो एकदम बहुत हैरत और ताज्जुब से इसे देखने लगा। इसे हैरत के दरमियान ही कहीं इसकी आंखों में एक रोशनी सी जली थी जिसे वो महसूस किए बगैर ना रह सकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये इधर रख दो। बैग वक्त दोनों को नरमी से मुखातिब करती वो अब्बा मियाँ के साथ 2 सीटर पर जा बैठी थी। वो अभी तक किसी खुशगवार हैरत के जेरे असर था। आप? मैं ठीक हूँ, मगर आप खुद आई। थैंक यू लाला रुख। वो हद दर्जा मुतासिर हुआ था। अब्बा मियाँ ने बताया था कि आप बीमार हैं। इसने अब्बा मियाँ की तरफ देख कर कहा, जो जरा अफसुर्दा से लग रहे थे। नूरा ट्रे मेज पर रखकर जा चुकी थी। अब्बा मियाँ तो यूं ही परेशान हो जाते हैं। बस छोटा मोटा सा बुखार था, ठीक हो जाएगा। मगर इस सब की जरूरत नहीं थी। मुझे शर्मिंदगी हो रही है। परहेजी खाने की जरूरत हर बीमार को होती है। वो जरा सा चौंका तो क्या वो इसकी बातें याद रखे हुए थी। थैंक यू लाला रुख। वो वाकईतन इसका एहसानमंद था। वो काफी देर वहां बैठी रही और इसे अच्छा लगा था वहां बैठना। कोई अपनाई सी दर आई थी अनेक्सी में। सब कुछ शनासा लगने लगा था। 6 बज गए तो इसने कलाई पर बंदी घड़ी देखी और फिर भी बैठी रही। पता नहीं क्यों, मगर आज इसका दिल नहीं चाह रहा था कि वहां से उठे और ब्रिगेडियर अतहर के वालिदैन के घर जाए। कोई बात नहीं, कल चली जाएगी। और फिर अगले चंद दिन वो यूं ही नूरा के साथ खाने की ट्रे लिए इसका हाल पूछने आती रही। अब्बा मियाँ वहां बैठे होते तो वो भी बैठ जाती, वरना खड़े खड़े चंद बातें करके चली जाती। वो मुकम्मल तौर पर सेहजाब हुआ था। ऑफिस के चंद कामों में ऐसा घिरा के कुछ रोज शतरंज के लिए नहीं आ सका। इन दिनों घर यूं वीरान लगता था, गोया आसेब था जो दुरो दीवार से लिपटा हुआ था। वो दोनों खामोश से रहने लगे। वो इनकी जरूरत बन चुका था। इस एतराफ से दोनों ही निगाहें चुराने लगे थे। वो खाना अब रोज नहीं बनाती थी। अक्सर नागा
کر جاتی۔ بریگیڈیئر اطہر کے والدین کے گھر بھی ہر شام نہیں جایا کرتی تھی، بلکہ اس دفعہ تو پورا ہفتہ گزر گیا اور وہ نہیں گئی۔ دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس شام وہ آیا تو گھر کے دور دیوار جاگ اٹھے تھے، چائے پیتی، شطرنج کی بساط سجاتے ہوئے، اور مسلسل بول رہا تھا، ہنس رہا تھا، اور پھر ایک دم اس کے کسی لطیفہ سنانے پر وہ دھیرے سے ہنس پڑی تو فرحاد اور ابا میاں رک کر اسے دیکھنے لگے۔ تم نے میری بیٹی کو ہنسنا سکھا دیا فرحاد، ابا میاں نے آنکھوں سے ٹھہر کر بولے تو لالا رخ کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ وہ ایک دم وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ باہر لان میں تاریکی پھیل گئی تھی۔ وہ وہیں گھاس پر بچھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ تو نہیں ہنستی تھی، پھر آج کیسے ہنس پڑی؟ کیا وہ لطیفہ اتنا دلکش تھا، یا وہ فرحاد کے دوبارہ آنے پر خوش تھی؟ وہ سر ہاتھوں میں دیے بیٹھی خود سے لڑتی رہی، یوں ہی الجھنے سے کچھ نہیں ہوگا لالا رخ۔ وہ ایک دم کہیں آس پاس سے بولا تو اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، برابر کرسی کی پشت تھامے کھڑا تھا۔ میں تو نہیں الجھ رہی۔ وہ شانے اچکا کر پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ ہنستی رہا کریں، اچھی لگتی ہیں۔ مجھے ہنسنا نہیں آتا فرحاد صاحب، جس قرب سے میں گزری ہوں ہنسنا بھلا چکا ہے۔ میں آپ کا دکھ سمجھتا ہوں لالا، وہ کرسی کے قریب کھینچ کر اس پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کی ٹریجڈی بہت بڑی ہے، مگر زندگی جمود کا نام نہیں ہے، زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ خود پر چھایا ہوا جمود توڑے، تازہ ہوا کا کوئی روزن کھولے۔ ہر انسان کو تازگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ تازگی کیوں نہیں چاہتی؟ رات کے اس پر لان کی گھاس نم تھی، وہ اس پر ننگے پاؤں بیٹھی تھی۔ آدھے چاند اور برآمدے کی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں فرحاد کا چہرہ مدھم مدھم سا دکھائی دیتا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں جان بوجھ کر اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں؟ کیا نہیں کر رہی؟ آپ اس قرب سے گزرے ہوتے تو سمجھ سکتے۔ لالا رخ نے قدرے دکھ سے نفی میں سر ہلایا۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ کیسے سمجھ سکتے ہیں آپ؟ گزرے ہوں گے آپ بھی بہت غموں سے، مگر میرا غم آپ کے غموں سے مختلف ہے۔ یہ ہر پل کاٹنے والا ایک زہریلا ناگ ہے جو میرے آس پاس منڈلا رہا ہے۔ کھونے کا قرب بہت اذیت ناک ہوتا ہے، یہ دکھ کو قرار نہیں پانے دیتا، میرے دکھ کو بھی قرار نہیں ملتا۔ کیا 8 سال بھولنے کے لیے سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے کافی نہیں ہوتے؟ زندگی سے سمجھانے والے انداز میں بولا تھا۔ بھولا تب جاتا ہے جب وہ دکھ کو ٹھکانہ مل جائے۔ کوئی دکھ کو ٹھکانہ نہیں ملتا۔ میرے آنسوؤں کو جذب ہونے کے لیے مٹی نہیں ملتی۔ وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موند گئی تھی۔ ایک موتی اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر رخسار پر پھسل گیا۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا لالا رخ۔ مرنے والوں؟ اس نے بند آنکھوں سے نفی میں گردن ہلائی۔ میرا کوئی نہیں مرا، میرے بچے اور میرا شوہر سب زندہ ہیں۔ زندہ ہیں؟ اس نے تعجب سے دہرایا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ وہاں چلے گئے ہیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ صحیح کہا تھا میں نے، وہ زندہ ہیں، مگر ادھر ہیں جہاں سے واپسی نہیں ہوتی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے سانس لیتی رہی، پھر بولی تو آواز آنسوؤں سے گیلی تھی، وہ لاپتہ ہیں۔ لاپتہ؟ 8 برس پہلے وہ جمعے کا دن تھا۔ اسد اور میرے دونوں بیٹے تیار ہو کر جمعہ پڑھنے گئے تھے۔ سفید کلف لگے کرتوں میں وہ پورے اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے جاتے تھے۔ اس روز بھی بہت خوش باش ہنستے مسکراتے تھے۔ میں نے اس دوپہر سندھی بریانی بنائی تھی، رائتا سلاد سب تیار کر کے میز پر لگا رکھا تھا، اور ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر بیٹھی میں گھڑی کو دیکھتے ہی ان کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ واپس نہیں آئے۔ کئی گھنٹے بیت گئے۔ ابا میاں کی طبیعت خراب تھی تو وہ گھر پر تھے۔ جب عصر ڈھلنے لگی تو میں مسجد تک گئی۔ وہاں اسد کی گاڑی ویسی ہی کھڑی تھی۔ امام صاحب اور دوسرے چند لوگوں نے بتایا کہ جمعے کے بعد کچھ افراد آئے تھے، چند لوگوں کو پکڑ کر گاڑیوں میں ٹھونسا اور چلے گئے۔ میں اور ابا میاں پاگلوں کی طرح ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں بھاگتے رہے، مگر ہر کوئی لا علم تھا۔ میرے معصوم بچوں کو کس نے پکڑا؟ وہ ظالم کون تھا؟ میں نہیں جانتی، کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں نے پورے شہر، ہر تھانے کا، چھاؤنیوں کا ایک ایک چپا چھان مارا۔ میں ہر دروازے پر گئی جہاں سے مجھے امید تھی کہ ہر جگہ میری امید توڑ کر مجھے لوٹا دیا گیا۔ میں نے پھر بھی اپنے بیٹوں اور اپنے شوہر کو نہیں دیکھا، پھر کبھی بھی۔ کچھ وقت گزرا تو خبریں آنے لگی کہ میرے جیسے اور بھی بہت سے
घरों से कुछ लोग लापता हैं। फिर कुछ वाकयात उभरने लगे। हमें पता चला कि शायद असद और मेरे बेटे को भी कुछ अजनबियों के हाथ बेच दिया गया। मैं हर इस खानदान से मिली जिनको कोई यूं ही पकड़कर लापता कर दिया गया था, और मुझे आहिस्ता आहिस्ता इल्म होता गया कि चंद सिक्कों के बदले में मेरी मोहब्बतों को बेच दिया गया। जिसने बेचा इसे बेचने का हक नहीं था, जिसने खरीदा इसे खरीदने का हक नहीं था। ये सौदागर कौन थे मैं नहीं जानती, मगर मुझे उम्मीद है कि रोज़े महशर एक एक का चेहरा पहचान लूंगी, एक एक का गिरबान पकड़ूंगी। इस रोज इन्हें कोई नहीं बचा सकेगा, मगर इस दुनिया में मैं कुछ नहीं कर सकती। ना इनको ढूंढ सकती हूँ, ना अपने घर वालों को। पूरा दिन और पूरी रात मुझे यह एहसास तड़पाता है कि मेरे बच्चे इस रोज भूखे मस्जिद गए थे। इस दिन के बाद से इन 8 सालों में पता नहीं इन्होंने कभी पेट भरकर खाना खाया भी होगा या नहीं खाया होगा, या फिर कहीं वो इस दिन से भूखे तो नहीं है। वो जिंदा हैं, इसका मुझे यकीन है, मगर वो कैसे हैं, किस हाल में हैं, मैं कुछ नहीं जानती। मैं हर शाम इनकी पसंदीदा खानों के देगचे बनाती हूँ और यतीम खाने में दे आती हूँ। मैं किसी के बच्चों को खिलाऊंगी तो अल्लाह मेरे बच्चों को खिलाएगा। रिज़्क का वादा तो इसने कर रखा है, वो इसे पूरा करेगा। मुझे इस पर भरोसा है। मेरी उम्मीद भी जिंदा है, मगर मेरे गम को करार नहीं मिलता, दुख को ठिकाना नहीं मिलता। कोई खबर आ जाती या वो तीनों अगर मर चुके होते तो मैं चंद रोज, चंद हफ्ते, चंद महीने या चंद साल रोती, मातम करती, दीवारों से सर टकराती और फिर रो रो कर खुद ही चुप हो जाती। मेरे गम को ठिकाना मिल जाता, मगर अब ये बेचैनी, ये लाइल्मी, ये इज़्तिराब, ये गम बढ़ता जा रहा है। गैर यकीनी सूरत हाल यकीनी गम से ज्यादा तकलीफ दह होती है। मैं हर रोज मारी मारी पूरे शहर में फिरती हूँ, शायद वो नजर आ जाए, शायद के कोई अपना मिल जाए। मैं हर रोज शाम की चाय के वक्त ब्रिगेडियर साहब जो हमारे हमसाए हैं इनके पास जाती हूँ। मैं रोज इनसे एक ही सवाल करती हूँ कि मेरे बच्चों और मेरे शोहर का कुछ पता चला। वो रोज एक ही जवाब देते हैं कि इंशाल्लाह जल्द ही पता चल जाएगा। मैं रोज उम्मीद लेकर जाती हूँ और मैं रोज टूटी उम्मीद के साथ लौटती हूँ। मुझे इस उम्मीद के खेत को रोज पानी देना पड़ता है, मगर फिर भी कभी कभी ये सूखे मुरझाने लगता है। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है फरहाद साहब के, मैं भूखों को खाना खिलाऊं ताकि मेरे बच्चे भूखे ना रहें। मैं बेघर लोगों को पनाह दूं ताकि वो कहीं दुनिया के किसी दूसरे खत्ते में मेरी लापता मोहब्बतों को पनाह मिल जाए। मैं घोंसलों से गिरे परिंदों को उठाकर वापस घोंसलों में डाल दूं, शायद कि मेरे बच्चे भी कभी लौट आए। इसने भीगी आंखें खोली तो चेहरा आंसुओं से तरता, नन्हे नन्हे कतरे रुखसार पर से फैल कर थोड़ी से नीचे लड़क रहे थे। फरहाद बिल्कुल खामोश दम बखुद से बैठा था। वो जरा सा मुस्कुराई। ये थी मेरी कहानी, जिसको जानने के लिए आप हम दोनों के करीब आए थे। अब्बा मियाँ तो कभी ये सारी कथा आपको नहीं ना सुनाते, ना ही हमारी कोई जानने वाला आपको इतनी तफसील बताता। मैं जानती हूँ आपको मेरा रवैया बेचैन रखता था, तजस्सुस दिलाता था कि सो मैंने चाहा कि मैं ये तजस्सुस खत्म कर दूं ताकि आपकी वो वजह खत्म हो जाए जिसके लिए आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं। गर्ज ये रिश्ते में शामिल हो, गर्ज जिस रिश्ते में शामिल हो इसे बहुत जल्द तोड़ देती है, और ऐसे टूटते वाले रिश्ते बहुत तकलीफ देते हैं। सो मैंने इस गर्ज के रिश्ते को खत्म कर दिया। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें, वरना मैं जाऊं। वो हथेली की पुश्त से रुखसार रगड़ती उठ खड़ी हुई। नहीं, मैं तो वो सख्त शर्मिंदा हो गया था। मैंने और अब्बा मियाँ ने एक फैसला किया है। काशान के किसी जानने वाले की एनेक्सी खाली हो रही है, आप चाहें तो इधर शिफ्ट हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम आपको 1 माह का नोटिस दे रहे हैं। इसके बाद हमें एनेक्सी वापस चाहिए। ये हम दोनों का मुत्तफिका फैसला है और हमें उम्मीद है कि आप इसको मान लेंगे और पहले से दुखी इंसानों को मजीद तकलीफ नहीं देंगे। कितने ही पल वो सर झुकाए बैठा रहा, फिर धीरे से गर्दन उठाकर इसे देखा। मगर आपने ऐसा फैसला क्यों किया? क्योंकि हम दो एक दूसरे को काफी हैं, हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं। अगर हमारा कोई तीसरा है तो सिर्फ अल्लाह। इंसान हमारे करीब इसलिए नहीं आते कि इन्हें हमसे मोहब्बत होती है, वो सिर्फ और सिर्फ तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर आते हैं। हमारी जिंदगियों की गुत्थियां जानने के लिए आते हैं, इन्हें सुलझाने के लिए नहीं, और फिर इसके बाद लापता हो जाते हैं। हमारे अपने पहले ही लापता हैं, अब मजीद रिश्ते बनाकर इन्हें खोने का हौसला हम में नहीं। वो वापस मुड़ गई और छोटे छोटे कदम उठाती बरामदे के जीने की तरफ बढ़ गए। वो रात की तारीकी में इसे दूर जाते देखता रहा। इसे पीछे से पुकारने की बुरी आदत थी, मगर आज वो चाहने के बावजूद इसे नहीं पुकार सका।
جی تو جناب یہ تو ہمارا آج کا ناولٹ، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔